Good morning. This is India Vision in Denmark, and we got Mr. Vasu Shroff from Dubai, along with his lawyer, Mr. Dharmendra Singh ji. Good morning, Vasu Shroff ji. Good morning. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वासु जी, आपके साथ जो हादसा हुआ जयपुर के, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? मैं 11th ऑफ अप्रैल शाम की फ्लाइट से वाया अबू धाबी जयपुर गया विथ माय फ्रेंड टू अटेंड द party of my friend Mohan Gurnani, who was a resident of Jaipur, now non-resident of Dubai. And he had a birthday party. Then I was supposed to go open my temple near Jaipur, about 180 kilometers. That is called Sikar Fatehpur. As soon as I landed 7:30, one officer came, he said, give me a passport. I gave a passport to him, and I was wheelchair passenger. So after that, he dragged me to that area, custom area. He said, remove your watch. I said, what? He said, watch. I stop you here. Watch आपके पहनी हुई थी वहां के ऊपर क्या था? watch यही शर्ट थी सफेद और यही स्लीवलेस था। स्लीवलेस में तो वॉच दिखाई देती ना, बराबर वॉच पहनी हुई थी ना। तो इस साथ जब स्लीवलेस नहीं था तो देखा उसने वॉच, he said remove the watch. अच्छा, एक मिनट वासु जी, एक मिनट आपको रोकता हूँ मैं। जहां तक मैं जानता हूँ, इंडियन कस्टम लॉ के अंदर आपके पास वेरिएबल कोई भी है, आपके जेब में छुपा हुआ नहीं है, आपके पहना हुआ है, they cannot ask you to declare it. You are free to go through green channel or red channel. You are free to go through. You don't need to declare it also. If you are wearing it, it's your personal. As per Rule 116 of Customs, they cannot stop you. 2016 में कानून बना था ये. Your personal item, they cannot stop you. They cannot question you. Right. तो ऐसा उससे कैसे? Jaipur Airport, there's no green channel, no red channel. Small board. I think I can send you the photograph. About 2 feet by 3 feet or 1 feet by 2 feet. Declaration counter. There's no counter, no table, no officer there. And as a wheelchair person, I didn't. Why I should read? Because I'm going out as a wheelchair passenger, and I checked my baggage. After that, they just dragged me to the counter. 1, 2, 3, 4 people are sitting like that. The policeman sitting. I thought his duty was only just to seal the envelopes, and they're looking at me as a guilty. And I told them, I'm the director of one of the shareholder of Taj Hotel. I've been in Dubai since 1952, and I got school there that I have come here to attend my friend's birthday, and then I'm going to Sikar, where the chief minister of Rajasthan coming to stay with me, and full government to stay with me. This much I told him, but this gentleman doesn't listen. He was, I don't know, because he's a mosque. He came from home 10:30, and he told, shut up, don't talk, don't like that, put his finger on this way. All right, my friend told me not to talk with him. Okay, 11:30, I said, where to pay duty? Oh, you have to pay about 39.4%, 50 lakhs duty. I said, where to pay duty? Well, though that bank is closed. I said, when the airport is open, how the bank is closed? Oh, don't worry, we'll call him phone. I said, why should? I took my passport and receipt from them. They seized my watch, kept the watch. I went away to drive to 4 hours to my destination. Next day I had a puja and this extra. Next 12th evening, 13th, I back to Jaipur, and 14th I came back here. In between, I met our lawyer, Mr. Dharmendra, who's present here. He just landed again back from Jaipur to make the case against this officer. He should be removed. He should be suspended. And we don't want in future like this officers to be duty anywhere, Indore, Pune, लेकिन मेरा सवाल, वासु जी, Amritsar. मेरा आपसे सवाल है, ऐसा उसने क्यों किया? क्या उसको रिश्वत चाहिए थी? क्या उसको I रिश्वत think चाहिए थी? they must be greedy. They must be expecting something from me to give rishwat. I'm against that. Bribe, I'm against that. They were expecting me, I presume, but I didn't offer them because I said, I paid the 15 lakh duty, but I have not paid single lakh paisa. But I said, let me go tomorrow. I consult the lawyer. Luckily, I met the lawyer, and he will tell you what happened. ओके ना, वासु जी, एक मिनट और पूछता हूँ आपसे मैं। वो जो ऑफिसर था, उसका बॉस भी आया होगा, क्योंकि कस्टम एरिया के अंदर ऑफिसर का सुपरवाइजर भी होता है, सुपरवाइजर भी आया था साथ में? नहीं, पहले ऑफिसर किया, देन ही कॉल हिज बॉस. अच्छा, नाम था
उसके मिस्टर उसके बॉस का क्या रिएक्शन था? उसके बॉस का क्या रिएक्शन था? रिएक्शन वेरी डर्टी। ही थॉट बड़ा मुर्गा फंसा है, बड़ा मुर्गा। हम्म, 40 लाख की घड़ी शायद उन्होंने देखी नहीं थी। हम्म, सोना का भी शायद देखा ही नहीं था। तो हम्म, देख घड़ी घड़ी देख रहे थे, घड़ी ऐसी। दो औरतें खड़ी थी, वो भी ऐसे देख रही थी। दो नौकर खड़े थे, वो भी ऐसे देख रहे। घड़ी क्या हुई, जैसे म्यूजियम हो गया। अरे पीपल, माय फ्रेंड, दे वेयरिंग डायमंड रिंग्स। 2.25 करोड़ 4 करोड़ की घड़ी के रिंग पहन के जाते हैं। लोग 1.25 करोड़ की घड़ी पहन के जाते हैं। अभी अंडानी अंबानी वासु साहब, वी कैन अफोर्ड दिस वॉचेस, वी कैन अफोर्ड। हम नहीं पहनेंगे तो कौन पहनेगा? नहीं वाशु जी, एक उसके बात आप बताइए। आप प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आपको अवार्ड मिला था यस। 2017 में, उस टाइम पे भी आपकी घड़ी पहनी हुई थी हाथ में ये। हम आप उसका अगर 2017 का फोटो देखें, उसमें भी आपके हाथ हाँ में यही घड़ी पहनी हुई थी। हाँ, बराबर है। फोटो अभी भी पीछे भी टंगा हुआ है, फोटो टंगा हुआ है। हाँ। सो आई तो ये सेंट आई शो देम 10 फोटोज। हम्म, आई कैन शो यू, ये घड़ी मेरे हाथ में है, अभी तक पहनी हुई है। हाँ हाँ हाँ। तो दिस सवाल इज मेरा व्हाट। ये है, सवाल मेरा ये है, आपसे भी है, या फिर आपके लॉयर से सवाल ये होगा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि भारतीय कस्टम कानून के अंदर जो 2016 में रिवाइज हुआ था, उसके मुताबिक पर्सनल वियरिंग, चाहे उसकी वैल्यू कोई भी हो, पहले कहते थे 50,000 पर होनी चाहिए वैल्यू, लेकिन अभी उसकी लिमिट नहीं है। कोई भी वैल्यू आपके पास एक पहना हुआ हाथ में जो वॉच है या कुछ भी है, उसको वो आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। न कस्टम। हमारी ज्योति का मंगलसूत्र उतार लिया। मंगलसूत्र। लेडी कैन नॉट रिमूव हर मंगलसूत्र आफ्टर शी टिल शी इज अलाइव। उनका मंगलसूत्र उतार लिया, वेट किया, ड्यूटी भरो। कब कब हुआ था? मंगलसूत्र। कब हुआ था उनका ये? ज्योति के साथ, हमारी ज्योति। हाँ, उसके साथ कब हुआ था ये इंसिडेंट? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ऐसे बहुत से मिसाल है। मैंने अभी कम से कम 100 आदमी इंटरव्यू किया है जयपुर वालों को। हाँ हाँ तो बा हम जयपुर के साथ नहीं जाएंगे। हाँ जयपुर नहीं जाएंगे, वाया दिल्ली जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे। हाँ हाँ दे हैरेस सो मच। दे हाँ डोंट केयर फॉर द टाइम। हाँ। दे डोंट। जूसर, ओ जूसर, दे मस्ट बी गोल्ड। दे ब्रोक द जूसर एंड अच्छा गिव हैंड अच्छा, आपसे जूसर। एक सवाल और पूछना है। दुबई से जयपुर डायरेक्ट फ्लाइट भी है, लेकिन दुबई से जयपुर वाया बॉम्बे भी जा सकते थे, या दुबई से जयपुर वाया दिल्ली जा सकते थे। तो आपने ये दुबई से जयपुर वाली फ्लाइट क्यों चुना? Because the direct flight, number one, and I heard new airport is open. I was happy, and I don't care as a businessman what I carry gifts like khajur, dates, dry fruit for my friends, and I'm going for puja. Jaipur, they said now there's a direct flight, 3 flights. Even though because there was no club class in the direct flights, I selected flight from Abu Dhabi because they have club class. I can't fit with small Air India or this Air Arabia or Spice. So I selected better may go from there, comfortable flight because I can afford that way. Jaipur maybe I thought because if I go Bombay, after Bombay connecting flight, या why to देखो the local flight you have 50 kilo allowed, here you have 40 kilo allowed. So it's not a question of money or this, but it's not with me. It's with out of 100 passenger, they harass 90 people, 90. They are looking at where vulture like vultures. तो They're ऐसा vultures. तो ऐसा क्यों करते हैं? क्या उनकी एजुकेशन नहीं है? क्या उनको कस्टम के लॉ रिश्वत। हो, कि या रिश्वत उनको लेना चाहते रिश्वत, हैं खाली? रिश्वत चाहिए, उनको रिश्वत चाहिए, ब्राइब। तो आई प्रिज्यूम दैट। या अच्छा, अभी ये बताइए, अब आप क्या एक्शन चाहते हैं इनके साथ में? एक्शन, मेरा लॉयर आया है जयपुर से, वो हाँ, आपको बताएगा एक्शन क्या ले रहे हैं हम लोग। आप कहानी बताएंगे सर। पहली बात तो ये है कि कस्टम में अगर आपके पास वेरिएबल है, तो कानून तो ये कहता है कि वो आपको पूछ नहीं सकते कि पुरानी है नई है, आपके पास पहनी हुई है घड़ी आपके पास में। तो कस्टम वालों को कोई हक नहीं पूछने का कि आपकी पुरानी है कि नहीं है, या इसको डिक्लेयर करो। तो ऐसा क्यों हुआ जयपुर के अंदर? रिसेंटली अभी एक हाईकोर्ट दिल्ली का एक पीआईएल था, उसका डिसीजन हुआ था। उसमें यही डिसीजन आया था कि जो आर्टिकल्स जो फीमेल्स वियर अप करती है, मेंस मोस्टली एक चैन वियर अप कर लेते हैं, फिंगर्स में आपका अंगूठी वियर कर सकते हैं, मैक्सिमम वॉच वियर कर सकते हैं, मेंस के पार्ट में ये था। और फीमेल्स एंड नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स वेडिंग्स में जाने के लिए वियर अप करती है। तो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग था, उसमें 30 लोगों ने पीआईएल फाइल किया था। उसमें अभी रिसेंटली रिजल्ट आया कि आप लोग
जो वियर अप किया हुआ है, जो आपने पहन रखा है, उसको पहनने वाले आर्टिकल्स को आपको डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है। दे आर ऑल्सो डिक्लेयर व्हेन यू आप जब जोन में से निकलते हैं जहां आपका स्कैनिंग होता है, इट मीन्स कि आप जब स्कैन होके वहां से निकले, कि इट मीन्स कि वो बाय डिफॉल्ट ही डिक्लेयर हो गया कि आपने ये आर्टिकल्स आपका पर्सनल है और आप बिलोंगिंग्स करके इसको आ रहे हैं। यहाँ 84 ईयर ओल्ड शराफ साहब जो व्हील चेयर पे थे, और उनको 1 घंटे बैठाया, उसके बाद में उनसे पूछताछ किया गया, फिर उसके 1 घंटे और बढ़ गया, 2 घंटे बढ़ गया। ऑफिसर्स ने एक थोड़ा सा अपने जॉब की नेग्लिजेंसी को प्रेजेंट किया यहाँ पे, जो मुझे लगता है। और जिस डिक्लेरेशन को ये कर रहे थे कि भाई मैं डिक्लेयर कर ले, आपको लगता है कि मुझे डिक्लेयर करना चाहिए, तो ठीक है, गो अहेड, आप डिक्लेयर कर लीजिए। डिक्लेरेशन फॉर्म आपने फिल किया, उसके बाद उस फॉर्म को हटा दिया गया। दैट्स वाई बाद में उस आर्टिकल्स को, आपके वॉच को उन्होंने डिटेन कर लिया। और उस डिटेन करने के बाद शायद मेरे ख्याल से इन्होंने यार उस टाइम भी कहा कि आप मुझसे जो इसका ड्यूटी है आप ना पे करने को तैयार हो, आप मुझसे ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। और 39.5% अप्रोक्स उसका ड्यूटी बनता था, जो मौके पे ये देने को तैयार थे मेरे क्लाइंट। लेकिन आई डोंट नो कि वहां पे क्यों नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि अगर फ्लाइट्स के टाइमिंग्स चेंज रहते हैं, नहीं 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 ये ऑफिस नहीं, नहीं। आपसे एक सवाल है, अगर वाशिक ये ड्यूटी देते तो 35 लाख के ऊपर करीब 13.5 लाख रुपए। 13.5 लाख, तो 13.5 लाख का हाँ, नुकसान था ना। वो तो बिना किसी बात के वो चार्ज कर रहे थे आपसे। यार वो तो आप एक डिग्निटी रखते हैं, आप पेइंग कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए आप पे कर देते हैं। अगर एक आम आदमी की बात करें तो वो शायद नहीं पे करेगा, वो तो कहेगा कि ठीक है, आप उसको रख लीजिए, मैं तो छोड़ के जाने को तैयार हूँ। लेकिन यहाँ इन्होंने एक अपनी सहानुभूति दिखाते हुए, ठीक है, अपना मैं अपनी तरफ से गलत नहीं होना चाहता, अगर कस्टम को लगता है कस्टम सही है तो मुझे कस्टम की बात को मान देना चाहिए। वहां तक भी इन्होंने कॉपरेट किया, बट 4 अच्छा घंटे बैठा के व्हील चेयर के ऊपर, दिस नॉट गुड। अच्छा, अब ये बताइए, आपको वॉच वापस कैसे मिली? सर, वॉच को वापस लेने के लिए मुझे डायरेक्ट कस्टम कमिश्नर के पास में मैंने एक एप्लीकेशन फाइल करी। मैंने कहा स्टूडेंट्स को, वॉच जो मेरे क्लाइंट है उनकी आपने जो डिटेन करी है वो गलत तरीके से डिटेन करी है, और उसको रिलीज किया जाना चाहिए, आपको री एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। और क्योंकि री एक्सपोर्ट जब करते हैं तो उसको, वॉच को जब इन्होंने डिटेन करके रखा, तो उसका री एक्सपोर्ट का एक चार्जेस है 7 डेज का 30 रुपीज। आप सिर्फ वो 30 रुपीज लेके मुझसे वापस री एक्सपोर्ट करते हैं, वो इंडिया में आके री एक्सपोर्ट वापस हो जाती, और शराफ साहब के पास में दुबई आ जाती है, वो वेयर अप कर दे। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आते तो वो बाय डिक्लेयर करके या डिक्लेयर होके ही आनी चाहिए थी बात, या मतलब डिक्लेयर होगी। लेकिन लेकिन उस वॉच को लेकिन 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 आपसे एक सवाल और है। मैंने रसीद देखी कस्टम वालों की, उसमें लिखा हुआ डिटेन्ड आर्टिकल। वो क्यों? क्या ये क्यों सर, ये? उन्होंने उन्होंने जो पेनल्टी लगाया है उस पे 10,000 का, हाँ हाँ हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो पेनल्टी नहीं लगना चाहिए था। हम्म, देयर इज लैक ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ वर्क, बिकॉज की पहले ड्यूटी लगना चाहिए था, उसके बाद में पेनल्टी लगना चाहिए था। जब हम्म। ड्यूटी ही चार्ज नहीं हुआ तो फिर पेनल्टी किस बात का चार्ज हुआ? आप बॉक्स के उस वॉच को रखने के चार्जेस जो 30 रुपीज थे वो क्लेम कर सकते थे, वो राइट था उनका, कस्टम था। हम्म। लेकिन ड्यूटी के रूप में आपका 10,000 डिपॉजिट करना, उसका कोई ग्राउंड उन्होंने नहीं दिया। उसको स्पॉट एजुकेटिंग कोर्ट बोलते हैं कस्टम्स के अंदर। स्पॉट एजुकेटिंग मतलब कि मौके के ऊपर एक कोर्ट लगाई गई, जिसमें मेरे को प्रेजेंट होना पड़ा बिहाफ ऑफ वाशी शराफ। मैंने उनको डिफेंस किया सारी बातों को, कि मेरे क्लाइंट ने वियर किया था उस दिन, हाफ स्लीव्स का शर्ट पहना हुआ था, आपके कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग्स है कि उन्होंने डिक्लेयर भी करने की फॉर्म भरा है, उसके बावजूद नॉन डिक्लेरेशन पे बात की जा रही है, तो मुझे लगता है गलत है। तो आपने, और अच्छा आपने दिए 10,000 रुपए? यस, डेफिनेटली मैंने उनके एक अकाउंट के अंदर मेरे तो फोन पे से पेमेंट तो किया। उसकी रसीद आप मुझे भेजेंगे प्लीज? हाँ बिल्कुल, मैं डेफिनेटली शो कर सकता हूँ। क्योंकि उसके रसीद बाद चाहिए, क्योंकि क्योंकि ये, मॉर्निंग में हाँ। फिर मॉर्निंग में उन्होंने मुझसे 30 रुपीज और लिया, ये कहते हुए कि ये हमारा लॉकर चार्जेस है। तो मुझे वो भी मैंने उनको मुझे दोनों रसीद चाहिए, क्योंकि ये किस कानून के अंदर उन्होंने 10,000 पे लिए, मुझे भी समझ में नहीं आया। पूरी दुनिया को बोलो वो सब मुझसे कि क्या बात है, क्या हो रहा है ये डैमेज है। सर, इसमें थोड़ा सा नेग्लिजेंसी ऑफ वर्क है, बाकी मैं इतना कहूंगा कि ये नहीं बनता उनका चार्जेस, बिकॉज कि जब ड्यूटी नहीं लगी तो पेनल्टी मेरे ख्याल से नहीं बनती। अच्छा, आपसे एक सवाल और है। क्या उन्होंने जो नादानी में किया काम को, उनको जानबूझ के किया कि आशीष श्रोफ अमीर आदमी है, सेठ आदमी है, दुबई के अमीर आदमी है, कुछ ना कुछ पैसे दे देंगे? आपका क्या ख्याल है?
नहीं, मैं इस बारे में मैं सहमत नहीं हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि वो नहीं समझ पा रहे थे कि वाशी श्राफ जब मौके पे मौजूद थे, मुझे नहीं लगता कि उनको इनके बारे में इतना जानकारी होगी कि ये किस डिग्निटी के मेंबर हैं या किस लाइफस्टाइल से रखते हैं। मेरे ख्याल से उनको जानकारी नहीं थी। ये लैक ऑफ नेग्लिजेंसी ऑफ वर्क ही रहा है मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि मैं अभी इन्होंने मुझे बुलाया, मैं दुबई आज वापस आया हूँ और सबके पास में हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। बेसिकली क्या कि हम ऑफिसर्स के अगेंस्ट एफआईआर, पहले सर का कहना था कि एफआईआर करो, उनको सस्पेंड करो, उनके लिटिगेशन में जाना चाहिए। लेकिन अब मैंने जो देखा है कि हम एफआईआर में नहीं जा सकते ड्यू टू गवर्नमेंट सर्वेंट, डायरेक्टली नहीं जा सकते। हम उनको रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे। तो जो कस्टम डिपार्टमेंट है, कस्टम कमिश्नर है, उनको रिप्रेजेंटेशन पहले जाएगा हमारा कि सो एंड सो इंसिडेंट हुआ, सो एंड सो नेग्लिजेंसी ऑफ वर्क वहां पे हुई है, तो उसके बारे में हम उनको अवगत कराएंगे। तो उसके बाद में ही हम उसमें पीआईएल में जाना चाहेंगे। और वाशी साहब सर का दिल और बहुत ही हृदय के बहुत धनी है। मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि ये इनका ये सोचना है कि ये एनआरआईज या जितने भी जो बाहर रहते हैं, जो जयपुर या छोटे एयरपोर्ट्स पे आते हैं, उनको एक लिबरल होकर एयरपोर्ट पे कस्टम्स को काम करना चाहिए, जैसे दिल्ली और मुंबई के अंदर करते हैं। थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए उसके ऊपर। तो इस पे हम लोग पीआई में जाने की बात करेंगे कि पीआई में जाना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, कि भाई सब लोगों को जो दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पे उसी तरीके से यहाँ ट्रीट किया जाना चाहिए, तो ना कि एक स्मगलर की तरह। तो आपका क्या ख्याल है? ये तो वाशी श्रॉफ थे, अमीर आदमी है, पैसे दे सकते थे, लेकिन अगर आम आदमी होता तो क्या होता था उसके साथ में? नहीं सर, ये अगर आम आदमी होता तो मैं आई एम डेफिनेटली दैट श्योर कि मेरे भी काफी कलीग्स, काफी एडवोकेट्स ने मेरे को कॉल किया कि हाउ डू आप कस्टम से किस तरीके से फाइट करके ये सब चीज लेके आए हैं। जहाँ पे 39% स्टैंप ड्यूटी की बात कर रहे थे, और कहाँ वो 10,000 रुपये पे हम लोगों ने उसको वहां से रिलीज कराया। तो बेसिकली कस्टम से लड़ना बड़ा मुश्किल है, या उसके लॉस से लड़ना बड़ा मुश्किल है, उसको समझना बड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल से। और शायद ही कोई दूसरा क्लाइंट होगा कि जो उस लेवल तक वहां जा सके, क्योंकि इतना हाई लेवल पे एजुकेशन के साथ में उसको बारीकी से समझना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। जी सर, आप कुछ और कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि छोटी छोटी नेग्लिजेंसी ऑफ वर्क है, उसको इम्प्रूव किया जाए। और जितने भी एनआरआई हैं, बेसिकली वो भी इंडियंस ही हैं एक तरीके से। और जब एनआरआई इंडिया में आते हैं तो एक रेवेन्यू क्रिएट होता है। एक वेडिंग डेस्टिनेशन, हमारा राजस्थान जयपुर बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन रहा है हमेशा। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू स्टेट के लिए क्रिएट होती है, हमेशा स्टेट के लिए भी क्रिएट होती है। तो वो रेवेन्यू कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये चेंजेस करने चाहिए इसमें। कस्टम डिपार्टमेंट को थोड़ा लिबरल होना चाहिए। और वहाँ पे जो दिल्ली और मुंबई के बेस पे जो वर्किंग